इसके ऊपर बैठ जाओ, ऊपर। ये स्टेडियम लगा है ना। अच्छा, मैं सोचा कोई नहीं आएगा। आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। यू कम दिस। देखो उसको कैसे धूप आनंद लाग रहे, आनंद में बैठे हैं वो। अच्छा लग रहा है। ग्रुप में कर देती ना मैसेज इस वाली वीडियो का। So first of all, जोर से बोले। First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtra Satsama Bhakti Vedanta Srila Bhavan Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satsama Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. आइए महाराज। हाँ, वो युधिष्ठिर महाराज वो पानी खोज लेके भेजा ना, बोले वन महादेव जी का था। वन महादेव जी टीवी है उधर। हाँ, अच्छा, उधर कौन पाठ कर रहे हैं? अभी जा रहा हूँ नीचे, में गया नहीं, किसी ने रूम में। अच्छा, हाँ। So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satsmad Bhakti Vedanta Srila Bhavan Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satsmad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus Feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satsmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauraganda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakas Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava and Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. So today is very super excellent, auspicious day, the appearance day of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Sachinandan Hari, who is the supreme personality of Godhead, saying Bhagavan. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. Because Srimad Bhagavatam gives evidence. Ete changsa kalapungsa Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna is the supreme personality of God. Ram Nisingha in the form of Sachinandani Gaurhari. In Chaitanya Charitamritam, Krishnadas Kaviraj very nicely and elaborately explained why Chaitanya Mahaprabhu appeared in this Kali Yuga in the form of Chaitanya Mahaprabhu. Dapare ante Kalir Prarambhe. In the end of Dapar Yuga or in the beginning of the Kali Yuga, Krishna appeared. Then when Krishna performed his Leela, then same Krishna again appeared in this Kali Yuga in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु के अवतरण के कारण के बारे में कुछ बता रहे हैं। जी, कृष्ण दापर युग के अंत में पधारे और लीला आदि करके संगोपन करके फिर उन्हें जब चले गए, फिर कलियुग के प्रारंभ में, कलियुग की प्रारंभ में क्यों उन्होंने आया, किस लिए? एक बार तो लीला करके चले गए स्वयं भगवान। समझ में आ रहा कि नहीं? पहले क्यों आएंगे? आने की क्या जरूरत है? एक बार तो अब आ गए। आप बैठो इधर, कथा सुनो, अच्छा लगे सुनो, जब तक अच्छा लगे तब तक सुनो, जब तक अच्छा नहीं लगे चले जाओ।
अरे इनके धूप लग रहे हैं कि बुखार हो गया था। अच्छा मैं तो शॉल और अरे नहीं नहीं, अब बुखार चढ़ जाएगा तो है। थोड़ा हिंदी बंगला सब बोलता हूँ। बंगला तो हिंदी ज्यादा, बांग्ला कम, बंगला है ही नहीं कोई। और कोई नहीं है, इंग्लिश का कोई ट्रांसलेशन भी नहीं है। महाप्रभु के अवतरण के बारे में बता रहे हैं। ये कृष्ण दापर जी के अंत में आए और लीला करके चले गए, फिर क्यों कली के प्रारंभ क्यों आए है? इस संदर्भ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वेरी नाइसली एंड एलाबोरेटली एक्सप्लेन ये व्हाई कृष्ण ही अपीयर्ड इन दिस कलियुग in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And there are two reasons. First, how many reasons? क्या क्या बताओ तो बताओ हैं? कौन कौन किसके किसको याद है बताओ तो बोले, तब तो बोले हाँ हमारे श्रोता, बोले जैसे श्रोता हो गया ना कथा उतनी प्रकार होगा। हरि कथा डिपेंड ऑन द श्रोता लिसनर्स। कौन सा कथा सुनना चाहते हैं? भूत पिशाच की कथा सुनना चाहते हैं, भूत पिशाच की कथा बोल देंगे। इफ यू वांट टू लिसन घोस्ट, द स्टोरी ऑफ घोस्ट व्हिच इट से गिर नहीं जाएगा नहीं। हाँ एक्चुअली देयर आर टू रीजंस why Krishna appeared in this Kali Yuga in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. One is called Mukhya Karan, another is called Gaun Karan. And primary reason and secondary reason. Primary reason 2 and secondary reason also 2. So you try to understand primary reason. What is the first reason of primary? Siradhaya Pranaya Mahima Kridiso Baniva. सीधा श्रीराधया प्रणय महिमा कृतिशो बाणैवा सद्दो जन मधुरिमा कृतिवा मदिया सुखंच मद अनुबोध कृतिशो व्यति लोभात तद भावड्ड समजने सचिगर्भ सिंधु हरिंद। श्रीराधया प्रणय महिमा कृतिशो बाणैवा। कृष्ण when departed from this material world and came in Golok Vrindavan, then Krishna is thinking in Golok Vrindavan, I released all kinds of mellows from the heart of the Brajavasis, Santa Dasa Sakha Vatsala Madhya, all kinds of, but I did not completely release the prem of Srimati Radhika. So for this regard is Siradhaya Pranaya Mohima. What is the glories of the divine love of Srimati Radhika? अभी यहाँ पर थोड़ा ये शब्द बोलते हूँ, ये प्रणय किसको कहा जाता है? प्रणय किसको कहा जाता है बताओ? The greatness. प्रणय किसको कहा जाता है? अच्छा हिंदी में तो बता दो, बताओ। प्रणय कहा जाता है अभिन्न हृदय, प्रिय प्रियतम के हृदय एकत्व हेतु होने पर वहीं पर प्रणय शब्द होता है। जैसे विवाह में क्या लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है? प्रणय शब्द लिखा, प्रणय संस्कार कहा जाता है। एक दूसरे के हृदय एकत्व हेतु हो जाए, तुम्हारे हृदय के साथ हमारे हृदय में कोई अंतर नहीं रहे। प्रणय मीन्स व्हेन lover and beloved or their heart is non different from each other's. Your heart is my heart is your heart. For this regard, that time you use this word pranay. In the same way, in our transcendental world also explain this way. And adu shraddha, tato sadhu sangha, bhajana kriya, anarthana vritti, nishtha, ruchi, asakti, bhav, prem. Then prem also different stages are there. Sneha, man, pranay. Pranay
मीन्स एकत्व देह भाव विधौ फॉर दिस रिगार्ड राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति स्मत् एकात्मवोपि भुवि पूरा देह भेद गतो तो चैतनाक्ष प्रकटं अधुना तद्यं च ऐक्यम आप्तम राधा भाव दुति सुबलितं नौमी कृष्ण स्वरूपम। देखो कितने सुंदर रूप में हमारे स्वरूप दामोदर इसको पहले व्याख्या किया। ये वास्तव राधा कृष्ण की प्रणय की विकृति ह्लादिनी शक्ति स्वरूप क्या है। Here Krishna Sarup Damodar he composed this verse. Radha Krishna Pranaya Vikriti Hladini Shakti Smat. Srimati Radhika, she is called the pleasure potency of Krishna. And Krishna के आनंद प्रदान करने वाले शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका है। समझ रहे हैं? श्रीमती राधिका only she gives the extreme pleasure to Krishna. And कृष्ण के आनंद दे ताई नाम ह्लादिनी। ह्लादिनी means that is called ह्लादिनी क्या है? आनंद। ह्लादिनी means pleasure potency, आनंद शक्ति। एंड इस जगत में हम क्या चाहते हैं? आनंद, भोजनानंद, शयनानंद, आनंद बिना ऑल वी वांट टू आनंद bliss. Someone the bhojan and we want to eat very nice, delicious and prasad. Bhojananand, Sayanananda, we want to sleep very nice, beautiful, soft bed. Who does not want to enjoy the Ananda? So here it says Radha Krishna Pranaya Vikriti Hladini Shakti Smat. राधा कृष्ण की प्रणय विकृति रूप ह्लादिनी शक्ति क्रम से राधा कृष्ण सर्वतः एकात्म होकर के विलास तत्व में नित्य प्रयुक्त और वही राधा कृष्ण नित्य स्वरूप में विराजमान, वह दो तत्व ही संप्रति एक रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। एक ही तत्व, देयर इज ओनली वन तत्व, एकोमेव द्वितीय नास्ति, ओनली वन, नॉट सेकेंड। एकमेव अद्वितीयम, उपनिषद also explain ekameva dvitiyam, only one tattva, no advitiyam, there is no second, only one, ekameva advitiyam tattva. So Krishna is called advitiya, eka tattva, ekameva advitiyam is one and without second, but he realized kinds of mellows from his Hladini Shakti and Hladini potency. So now just I also emphasize this word, Sri Radha Pranaya Mahima Kritiso Banaiva. Krishna is thinking, what is the glories of the divine love of Srimati Radhika towards me? And कृष्ण यही सोच रहे हैं नित्य गोलोक वृंदावन में, ये मेरे प्रति राधा जी के इतने प्रेम, क्या तत्व? आश्रय तत्व है। आश्रय तत्व की भाव विषय तत्व अनुभव कर नहीं पाएंगे, है। कृष्ण ही इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव, बट ही कांट टू रियलाइज द आश्रय भाव, विदाउट टेकिंग the mood of Srimati Radhika, no one can realize the Asray Bhav. So for this regard, he are saying this verse, Radha Pranay Mahima Kritiso Banaiva Saddot Jano Adbhuta Mahima Madhurima. And what is my sweetness? Srimati Radhika, she is always realizing. मेरे सुंदर मधुरिमा जो है, स्वीटनेस जो है, और राधा जी सदा सर्वदा आस्वादन करते हैं। मेरे मधुरिमा क्या है?
देखो मैं एक बताता हूँ, हिंदी में अभी बताता हूँ। चीनी है ना, शुगर कैन टू टेस्ट इज ओन स्वीटनेस। समझ में आया क्या बोला, बताओ। Sugar cannot taste his own sweetness. वो तो एक ही शब्द में बोल दिया, वही बोल दिया आपने। चीनी जो कभी अपना चीनी स्वाद है, स्वयं नहीं चीनी को भी अपने जो मिष्टता जो है वो आस्वादन नहीं करता है। चीनी के मिष्टता स्वीटनेस कौन आस्वादन करता है? हम लोग हैं? चिट्टियां जो चीनी खाएगा है, ये आपको जो चीनी खाएगा, चिट्टियां हो, मनुष्य हो, जीव हो, जो चीनी खाएगा वो चीनी की आस्वादन करें। मिष्टता जो है वो आस्वादन करेगा। चीनी को भी अपने मिष्टता से, शुगर कैन नॉट टेस्ट इज ओन स्वीटनेस है। किंतु देखो इसमें एक भी गुड़ रहस्य है? चीनी क्या बोले, चिट्टियां, मैंने कहा चिट्टियां यदि चीनी खाने के लिए जाए, चीनी के वो बनता है ना, क्या बोलते हैं, सिरप, तो चाशनी, तो चिट्टियां वहीं पर जाकर के वो मर जाता है। आप देखे होंगे चाशनी पर चिट्टियां जाकर के सब मर जाते हैं, उसके पैर में सारी चिट्टी लग जाता है और मर जाता है। चलो, so now here the Sri Radha Pranima, so Krishna is thinking, what is the beauty, sweetness? What is my sweetness, Madhurima? The Srimati Radhika, she is always relishing. Then third, when Srimati Radhika, she relish my sweetness, what kinds of feeling coming in his heart? जब श्रीमती राधिका मेरे मधुरमा के आस्वादन करती हैं और आस्वादन करके उनके हृदय में कौन सा अनुभव होता है, ये तीन वस्तु यहाँ पर एक ही श्लोक में तीन कारण भी दिखा रहे हैं। क्या क्या बताओ, कोई बताओ, बताओ कितने बार तो सुना, हजारों बार, बताओ। हाँ, राधा जी जिस प्रेम का आस्वादन करती हैं, मेरा प्रेम की मधुरिमा कैसी है? मेरा प्रेम का मधुरिमा से ना ना ना, श्री राधा प्रेम, राधा जी की प्रेम की मधुरिमा क्या है? श्री राधा प्रणय महिमा, राधा जी की प्रेम की महिमा क्या है? ये पहले जो है कहते जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं राधा जी की प्रणय महिमा वो क्या है? जो मेरे जो अद्भुत जो मधुरिमा जो राधा जी सदा सर्वदा आस्वादन करती है, ये दूसरा है। तीसरी क्या है ना, राधा जी मेरे मधुरिमा के आस्वादन करके उनके हृदय में कौन सा अनुभव है? ये तीसरा बोलो। ये तीन को आपको अच्छी तरफ से जानना पड़ेगा। You have to learn these three. Why? Just I also to Krishna in Golok Vrindavan. Krishna, he performed all his Vrindavan Leela. He returned back Bhauma Vrindavan to Golok Vrindavan. And then Krishna, he is thinking these things. Three things he is thinking. Jis Radhaya Pranay Mahima Kridiso Banaiva. Saddo Jano अद्भुत मधुरिमा किदुसो वामुदे सुखंच मधुभूत किदुसो व्यति लोहा। ये तीन वस्तु के जानने के लिए कृष्ण के हृदय में क्या हुआ, क्या क्या लोभ उत्पन्न हो। भाई किसी के लोभ उत्पन्न हो जाए वो ढूंढेगा। जैसे आप लोग, मैं तो सोचा कोई नहीं आएगी तो जंग तो है, क्यों देखो आप लोग सब कहाँ कहाँ से दौड़ करके आ गए। आपको पता क्या है? आप लोग के हिसाब में लोभ है इसलिए आप लोग आए हैं, लोभ नहीं हो तो नहीं आते हैं। तो दैट मीन्स इफ ग्रीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू अटेन आवर हाईएस्ट परफेक्शन। लोभ ही हम लोग के क्या करते हैं, अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति करा देते हैं। जितना वस्तु में जो लोभ होगा
लोभ ही क्या करते हैं, वो अविष्ट वस्तु को आपको क्या कर देता है, प्राप्त करा देता है। इफ यू ग्रेट कमिंग, इफ रियल ग्रेट कमिंग, देन यू विल अटेन योर परफेक्शन। ये लोभ है। ये कृष्ण के हृदय में कृष्ण के अनेक अवतार है। पहले देखो नारायण अवतार, इन द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड नारायण maybe little bit greed coming, not so much. In the incarnation of Lord Narayan, the greed coming. What the greed coming? How Lakshmi Devi, she served her feet. नारायण अवतार में लक्ष्मी देवी नारायण की भी चरण कमल की सेवा करते हैं। नारायण भी विचार करने लगे, लक्ष्मी देवी मेरे चरण कमल के सेवा करके उनको क्या होता है? इस जगत में कोई किसी के सेवा करे, सेव्य वस्तु में उसके एक दूसरे की आनंद होता है। आज समझे। किंतु वहीं पर नारायण की भी हृदय में थोड़ी सी ग्रीड आ गया। दे नारायण से आगे जब बढ़े, चलो नृसिंह अवतार में आ गए, जहां पर भक्त वात्सल्य है। नृसिंह अवतार से आगे जब चले तब देखा राम अवतार में आ गए। राम अवतार से आगे चले तो द्वारकाधीश कृष्ण में आ गए। कृष्ण के हृदय में यानी भगवान के हृदय में भी लोभ संचार होते जा रहे, लोभ बढ़ते जा रहे हैं। यही लोभ आगे बढ़ते बढ़ते कृष्ण में आकर के पूर्ण रूप से प्रकाश हुआ। जस्ट आई टोल्ड एक्चुअल गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज, ही एक्सप्लेन हाउ ग्रीड इंक्रीजिंग, ये व्हाट इज कॉल्ड, बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग इन द हार्ट ऑफ लॉर्ड। भगवान के हृदय में ये लोभ कैसे बढ़ते जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। शांत रस, शांत रस से दास रस, दास से वात्सल रस, वात्सल से सख रस, सख रस ना, शांत दास सख वात्सल रस में, और वात्सल रस के आगे जाकर के माधुर्य रस में जा रहे हैं। Actually, here we are discussing about how the greed to bringing us to how to realize the different stage, different types of the mellows rasas. In the same way, the incarnation of Narayan, then incarnation of Narsinga Dev, incarnation of the other Ram, then Dwarkadhish Krishna, then Mathuradhish Krishna, then coming in Varnandana Samsundar. Greed is very important. Even a sadhaka, if you are greed, then you inquire, and inquisitive mood will come. Understand? जितने परिमाण आपके हृदय में लोभ उत्पन्न होगा, लोभ ही क्या करेगा, आपको उस वस्तु की प्राप्ति करा देंगे। है जैसे उस दिन कोई बता रहे थे ना, चलो आप चलते चलते आपको 10 रुपये आपको मिल गया, है 10 रुपया मिला, 10 रुपये की गड्डी मिला, बहुत पैसा थैला। फिर आगे चले, देखा 50 रुपया की गड्डी मिलते, आपके थैला उतना ही था, तो आप क्या करोगे, 10 रुपये की गड्डी के फेंक करके 50 रुपया की गड्डी को आप थैले में भर लोगे। फिर आगे गए तो देखा कि 100 रुपये की गड्डी मिला, तो क्या करोगे आप, 50 रुपये की गड्डी फेंक दोगे, 100 की गड्डी। फिर 500 रुपये की गड्डी देखोगे तो क्या करोगे, फिर नोटबंदी हो गया ना, 1000 रुपया तो नहीं है, फिर 2 डायरेक्ट कहाँ चले गए, 500 रुपया से कहाँ चले गए, 2000 रुपये की गड्डी आ गई। अच्छा बताओ आप क्या करोगे, तो 500 के फेंक करके 2000 के गड्डिया भर लो। देखो जितने ऊंचा वस्तु प्राप्ति होगा, निम्न वस्तु का हम त्याग देते हैं, कहने की तात्पर्य है ऊंचा वस्तु के प्राप्ति करने के साथ हम निम्न वस्तु के त्याग देते हैं। जस्ट आई गिव एन एग्जांपल, इफ यू फाइंड आउट 10 rupees note sum and you put in your bag, then after a couple of minutes you saw the 50 rupees notes
there. So you will give up the 10 rupees note and put your bag 50 rupees note. Then you will go more forward, then you saw the 100 rupees, then you give up the 10 rupees, 50 rupees note give up and take the 100 rupees. Eh? Then you are there 500 rupees, then you will give up the 100 rupees note you will give up and take the 500 rupees. Then you would earn 2000 rupees note. So automatically give up the 500 rupees. And that means conclusion is that if you get the higher stage, higher rasa, understand? Then automatically give up the lower rasa. उच्च रस की प्राप्ति होने के साथ ही साथ जीव निम्न कोटि के रस को त्याग दे देते हैं। कोई गुड़ खा रहे हैं, यदि उसके रसगुल्ला दिया जाए गुड़ फेंक देगा। Someone taking the good means jaggery. And if I will give you the rasgulla, then you will give up the good and will take the rasgulla. Then the same way, ras madhurya, santa dasa sakha vatsalan madhurya. So here Krishnadas Kaviraj Goswami also explains, Krishna is one. He is akhanda advaigan paratattva. Actually, first you establish Krishna is called akhanda advaigan paratattva. This is very important in our Gaudiya philosophy. क्या बोला? Who is Krishna? Akhanda. Akhanda means undivided. And Aditya, eternal and transcendent. And Krishna एक होते हुए पर भी अनंत स्वरूप में प्रकाश होते जाते हैं। इसी के कहा जाता है कृष्ण के स्वाभाविक अचिंत्य शक्ति। कृष्णा he has an spontaneous inconceivable potency. कृष्ण के कहा जाता है ये स्वाभाविक और अचिंत्य शक्ति। दो वस्तु लगा दिया, क्या बताया? स्वाभाविक और अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति कैसे? स्वाभाविक। स्वाभाविक किसको कहा जाता है? नेचुरल, कोई बनावट नहीं है, नेचुरल। कृष्णा he has one potency that is called natural and inconceivable potency, अचिंत्य शक्ति। उस अचिंत्य शक्ति के द्वारा कृष्ण अनंत स्वरूप एक होते हुए पूर्वी अनंत स्वरूप में प्रकाश हो जाता है। He is one, but he manifests in many forms. But all his incarnation, all his form non-different from him. Ramadi murtisu kala niyamena tishtan nana avataro makar bhuvanesu kintu Krishna sang paramod puman Govindam adi purusang tamahang bhajami Govindam adi purusang tamahang bhajami. Ram Nisanga Bada, they are not non-different from Krishna. वो कृष्ण से कोई भिन्न नहीं है, अभिन्न है। They are non-different from Krishna. But according to Ras Vichar, or Krishna is the supreme. Siddhanta Tattva Vedesu Opi. According to the conception of scriptures, Ram or Krishna में कोई भेद नहीं. There are no difference between Ram and Krishna. Same Ram, same Krishna. He manifests in the form of Ramachandra. Same Krishna is there. And then Krishna also manifests in the form of Ramachandra is staying in Ayodhya. Same Krishna in her Golok Vrindavan, or same Krishna same time also manifested in the form of Ramachandra in Ayodhya. So maybe you would think, oh, there is Krishna, here is Ram, so the two. You are thinking the difference, but no. This is called Achintya Shakti. थोड़ा इसे समझने के प्रयास करो। क्या बोला बता दो, आप बताओ। दीदी बताओ। आज को दे दो, उसको मांग दो, कुछ सुनाओ। क्या ध्यान नहीं था गुरुदेव, ध्यान नहीं दिया। मैंने ये कहा था
कृष्ण अचिंत शक्ति के द्वारा, एक होते हुए अचिंत शक्ति के द्वारा विविध रूप में, अनेक स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। एक ही स्वरूप में कहाँ पर? गोलोक वृंदावन में है। फिर अचिंत शक्ति के द्वारा रामचंद्र के रूप में अयोध्या में है, और नारायण में, एक वैकुंठ में नारायण के स्वरूप में है। तो एक ही भगवान अनंत विग्रह के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। एक ही साथ में कृष्ण कहां पर है? गोलोक वृंदावन में। एक ही साथ में कृष्ण अयोध्या में रामचंद्र में रूप में है। एक ही समय में कृष्ण वैकुंठ में नारायण के स्वरूप में है। अनंत वैकुंठ, एक नहीं, अनंत वैकुंठ, अनंत वैभव। बोले ये कैसे संभव है? बोले यही है भगवान की स्वाभाविक अचिंत शक्ति। एक होता है अचिंत शक्ति और उसके साथ और दूसरी विशेषण दे दिया, क्या? स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस, उसमें कोई मिलावट नहीं है, नेचर है। बोले यही है भगवान की अचिंत तत्व। ऐसा समझे? हम एक साथ में अनेक स्वरूप में एक स्थान में विराजमान, विभिन्न स्थान में नहीं रह सकते। जीव और भगवान में यही अंतर है। जीव केवल एक स्थान में एक स्वरूप में रहता है, और भगवान अनंत स्वरूप में अनंत स्थान में एक रहता है। एक ही स्थान में स्वयं कृष्ण कहाँ रह रहे? गोलोक वृंदावन। आज महाप्रभु की लीला भी मैं बताता हूँ, जिससे हमारे क्या नाम, नरहरि सरकार बहुत सुंदर श्लोक में बताते जा रहे हैं। देखो इसके नाटक करो, ड्रामा करो तो बहुत सुंदर आएगा। है? कहते हैं पश्यति सखी नित्य गोलोक वृंदावन। भगवान के त्रिविध धाम के बारे में बता दूं, चले आपके समझ में ठीक हो जाए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ धाम ऑफ लॉर्ड। भगवान के त्रिविध धाम, एक है प्रकट धाम, एक है अप्रकट धाम, और एक नित्य क्या बोलते हैं, अरे नहीं, जो धाम दृश्यमान प्रकाश धाम, याद है क्या क्या बोला? हाँ, सब पंडित है, अच्छा लग रहा है, समझ में? ये 3 धाम के बाद अप्रकट धाम कहाँ पर? गोलोक वृंदावन, जहां पर कृष्ण दैट इज इटर्नल ट्रांसेंडेंटल धाम ऑफ लॉर्ड है। जैसे गोलोक वृंदावन अप्रकट धाम, नित्य लीला हुए पर कृष्ण की चले अद्यावधि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारी कृष्ण एंड चैतन्य महापुरुष लीला स्टिल इज गोइंग एंड अप्रकट गोलोक वृंदावन, अप्रकट शतद्वीप धाम, अप्रकट गौर धाम, चैतन्य महापुरुष लीला इज गोइंग ऑन देयर, कृष्ण लीला इज गोइंग ऑन देयर आल्सो, because वृंदावन धाम एंड शतद्वीप धाम simultaneously are going on. That is called aprakat dham. This is where the eternal is. Or prakat dham, when Krishna manifested his dham with the yogma in this material world, that is called prakat dham or prakat lila. As like Krishna manifested his lila in Dapar Yuga in this Vrindavan. Actually, this is coming from where? अप्रकट गोलोक वृंदावन। दापर युग में कृष्ण अपने नित्य धाम को जो है इस जगत में प्रकट कराया। तो इसके मतलब नहीं वहीं पर नहीं है, वहीं पर भी है, यही जोग माया की विशेषता है ना? समझ में आ रहे? अप्रकट धाम में तो लीला चल रही है नित्य, फिर जोग माया के द्वारा उसी अप्रकट लीला को इस जगत में प्रकट कराते हैं, और इस जगत में जब प्रकट होती है वो लीला यहाँ पर भी प्रकट हो चल रही है, वहीं पर भी चल रही है। देखो कैसे, बोले कैसे संभव है? बोले इसी कहते हैं अचिंत तत्व जोग माया दर्शितम। श्रीमद् भागवत में इसी के सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं जोग माया दर्शितम, जोग माया बलम जोग माया दर्शितम है। भगवान कि यही लीलाएं जो है जोग माया के द्वारा प्रकाशित होते हैं, और शुद्ध भक्त उस जोग माया के द्वारा उस लीला को दर्शन करते हैं। दोनों धाम के बारे में, एक प्रकट धाम और एक अप्रकट धाम, दोनों एक ही साथ में चल रहे। वहीं पर भी राधा कृष्ण की लीला चल रही है, मानो रास लीला हो रही है,
और यहाँ पर भी रासलीला हो रही है, एक ही साथ में दो रासलीला कैसी होती है? यदि को वहां से लेकर यहाँ प्रकट कर दिया है, बोले यही जोग माया के कार्य, एक ही साथ में अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम में वहीं पर भी लीला चल रही है और इधर भी चल रही है। और तीसरी धाम क्या बताया? दृश्यमान प्रकाश है। नाउ यू आर गोइंग टू वृंदावन, you cannot see the Krishna's Leela, you can see, just you can see the place where Krishna performed his Leela in Dapar Yuga. If you go now Radha Kunda, Giriraj, Govardhan, Sam Kunda, you can see that the spot, place. अभी वृंदावन में जाए आपको राधा कुंड, गिरिराज, गोवर्धन ये समस्त स्थान दिखाई पड़ेगा, किंतु लीला नहीं दिखाई पड़ेगा, है? किंतु वो लीला किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रही है? अद्यावधि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारे बार, स्टिल राधा कृष्ण लीला इज गोइंग ऑन एनी ब्रह्मांड, इनमेबल ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं जो है वो चल रही है। दोज आर हाई क्लास एग्जाल्टेड भाव साधक, by the causeless mercy of Krishna, they can see how this Leela is going on. So for this regard, Vishwanath Chakravarti Pad explained this Leela how is going on this अनंत ब्रह्मांड, but एक ब्रह्मांड में केवल एक ही वृंदावन है, only so many brahmandas, universe, but every brahmanda is only one Vrindavan. Only one Vrindavan. But this Vrindavan Leela is going on another Vrindavan, another Brahmanda. Now you cannot see the Radha Krishna Leela in Vrindavan. But in other Brahmanda, the Radha Krishna Leela is going on there. So for this regard, those are high class, exalted Bhava Sadhak. By the causeless mercy of Krishna, they can see how Radha Krishna's Leela is going on in Brahmanda. In the same way, you can apply about also Lord Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu is also Triveda Dham. One is called Aprakat Shatadip Dham. One is called Prakat Shatadip Dham. One is called Dissaman Shatadip Dham or Navadip Dham. समझ में आया? So same way, Chaitanya Mahaprabhu's three dhams now is going on. One is called Aprakat, the transcendental dham. That is called Shatadip Dham or Navadip Dham. Another is called Prakat. When Chaitanya Mahaprabhu performs his Leela, that dham is called Prakat Shatadip Dham, Prakat Leela. And now we are looking, and here, same Navadip Dham here. But Leela is not manifest. Leela you cannot see manifest. So now coming in this way, Narahari Sarkar explained how the Aprakat Leela and Prakat Leela simultaneously is going on. Maybe your question will come. Because for this, Krishna with his Jog Maya, Krishna अपने जोग माया के द्वारा वो लीला को इस जगत में प्रकट कर, वहीं पर भी लीला चल रही है और उसी लीला को फिर यहाँ पर भी प्रकट कर दिया। एक ही simultaneously two लीला is going on प्रकट लीला and अप्रकट लीला. So Narahari Sarkar he explained that when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, Pasati Sakhi, the Rasla is going on here in Aprakat Golok Vrindavan. Then one Sakhi of Srimati Radhika told Sakhi, Pasati Sakhi, hey Sakhi, look, they are upstage. Upper stage, just you make the one drama. Very nice, beautiful drama place. So Aprakat Golok Vrindavan in the upper and Prakat Navadip Dham in lower. Do you understand? Aprakat Golok Vrindavan Dham is upper and Prakat is lower. Which Prakat? This Navadip Dham. Shatadip Dham. So for this regard, those gopis just performing Ras dance in Aprakat Golok Vrindavan. So then one gopi asked to another gopi, Pasati Sakhi, hey Sakhi, come.
very beautiful things, marvelous. What is that? And Pasati Sakhi Bhutale, Khiti Tale means in this material world. That means that gopis are staying in where? Aprakat Golok Vrindavan. And they indicate Pasati Sakhi, look. But what you will see? Look, our beloved Krishna. Eh? He took sannyas. Eh? In this Sanskrit words, Narahari Sarkar explained the Pasadi Sakhi. Is Sakhi, our beloved Krishna. Now he took sannyas. That means that Chaitanya Mahaprabhu sannyas lila is going on. And understand? Then one Sakhi, how possible? And here is that one Sakhi, they indicate with the finger and showing. Pasati Sakhi. Oh my girlfriend, look how our beloved Krishna, and he took sannyas in Shatadip Dham. And Mahaprabhu's Leela is going on. Sannyas Leela is going on. Then one Sakhi told, how possible our beloved Krishna will take sannyas? Eh? No, look. Just our beloved Krishna, he covered his body with our Samini's complexion and her mood. And कोई सखी अप्रकट गोलोक वृंदावन में रासलीला के उपरांत है, कोई सखी एक दूसरे से कौतुकी होकर के कहने लगी, सखी देखो हमारे प्राण काम तो गोविंद आज सन्यास ग्रहण किया है। बोले हम तो विश्वास नहीं कर सकते, जो कृष्णा सन्यास ले लेंगे ये कभी हम विश्वास। एंड कृष्णा विल टेक रिनाउंस ऑर्डर, आई डोंट बिलीव। व्हाई नॉट? अरे हु विल टेक सन्यास? लुक द सम सिम्टम है। सन्यास जो लेंगे उसकी कुछ तो लक्षण होना चाहिए ना, है? सन्यास के लक्षण क्या है? वही लक्षण क्या है बताओ? कम से कम तो धीर शांत होना चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए, है? काम एंड क्वाइट, है? स्त्री से दूर रहते, है? गंभीर होता है? किंतु हमारे प्राण गोविंद तो ये लक्षण एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। कृष्ण हैज नो एनी क्वालिफिकेशन, he will take sannyas. He is to be nonsense rascal. How possible to take sannyas? He stole our clothes, joked with us different ways. Understand this? So how possible he will take sannyas? Then another video, don't listen. Pasati Sakhi, look, bhutale khiti tale. Look how Krishna, and he took sannyas. Then another Sakhi told, अरे सखी तुम तो पागली हो गई, you are completely mad. This is called the very sweet loving words. अरे पगली, how possible our beloved Krishna? But he took sannyas saffron cloth. Sannyas cloth means is what? Saffron cloth. Krishna took the saffron cloth. And he shaved his head. Then one Sakhi told, no, you don't know, this is not his saffron cloth. कृष्ण के जो है, जो सन्यास ले लिया, आप जो बता रहे हो उनके जो सफरन क्लॉथ जो बता रहे हो, गेरुआ जो वस्त्र जो बता रहे हो, वो गेरुआ वस्त्र नहीं है। वो है क्या चीज? बोले हम लोग रासस्थली में प्रेम विहार आदि किया कृष्ण के साथ, और प्रेम विहार करते करते अपने वक्षस्थल की जो कुमकुम है हमारे कपड़े में क्या हो गया? रंजित हो गया है। और उसी कपड़े को हम लोग क्या करते? बदल दिया और वहीं पर छोड़ कर के आया है। जैसे हमारे कपड़ा जब पसीना में भीग जाए तो क्या करोगे आप बताओ? चेंज क्या करोगे? उस वस्त्र को आप छोड़ देंगे, दूसरे वस्त्र को पहन लो। तो गोपियां उसी प्रकार कर रही है। उस रासस्थली में हम जब रास किया, नित्य गीत आदि, रास माने क्या है? नित्य गीत, नित्य गीत तरह इन द रासस्थली वी परफॉर्म
we perform dancing and singing. Then so much sweat coming. Eh? Then our all clothes completely were wet with our kumkum. Eh? Just kumkum completely were colored. Then we left that the cloth, change our cloth. Eh? But now our beloved Krishna, what did he? वही जो है कुमकुम रंजित वस्त्र को क्या कर लिया? अपने शरीर पर धारण करके कहते मैं सन्यास ले रहा हूं। ये कोई सन्यास होता है? किसी के पड़ा हुआ कपड़े को आप अपने धारण कर ले, वो सन्यास थोड़ी हो जाता है। बोले उनके सन्यास मंत्र किसने दिया बता पहले? कृष्ण के सन्यास मंत्र किसने दिया? वो तो अपने आप ले लिया ना। मैंने कहा ना, ये महाप्रभु के किसने सन्यास दिया है? लोक दृष्टि से कहा जाता है महाप्रभु के किसने सन्यास दिया था? तो दीक्षा दिया था इतने दिन केशव भारती। हाँ, जो बोलोगे ठीक से बोलो, ये झूठ बोल रहे आप भी वो झूठ बोल रहे हैं। एक सियार क्या बोले, हुकार करके भैं करने लगे, तुम भी भैं कर, ये बोले ईश्वरपुरी बात, ये बोले ईश्वरपुरी बात है नो। भेंट के चाल मत, चिंता करके बोलो ठीक बोल रहे कि नहीं। चैतन्य महाप्रभु के किसने सन्यास दिया? चैतन्य महाप्रभु टुक सन्यास फ्रॉम केशव भारती। एक्चुअल केशव भारती ही डिड नॉट गिव सन्यास टू लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ही हिमसेल्फ टुक सन्यास है। आज समझे, महाप्रभु फिर चालक है। इसलिए अद्वैतवादी लोग कहते हैं तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु हम लोग के संप्रदाय में है, क्योंकि केशव भारती वो अद्वैतवादी के सन्यासी थे, इसलिए और अद्वैतवादी महाप्रभु के सन्यास दिया। इसलिए अद्वैतवादी लोग कहते हैं चैतन्य जो है वो हमारे संप्रदाय के, भारतीय संप्रदाय के हैं, किंतु वास्तव सत्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भगवान बिफोर टेकिंग सन्यास लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु आस्क्ड टू केशव भारती, टुनाइट वन मंत्र हैज कम इन माय ड्रीम। आज रात में सपने में मेरा एक मंत्र आया था, है वो सन्यास की मंत्र। क्या वही मंत्र आप मुझे देना चाहते हैं? केशव भारती बोले कौन सा मंत्र तुम्हारे कान में आया है? तब उन्होंने कहा ये मंत्र, सन्यास की मंत्र बता दी। तो उसका मंत्र मतलब क्या है? उनको सन्यास दिया। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु किसको सन्यास दिया? केशव भारती को सन्यास है, और फिर लोक दृष्टि से उनसे सन्यास लिया है। ये गुड़ रहस्य है, ये गौड़ीय वैष्णव की सिद्धांत है। चैतन्य महाप्रभु when he approached to Keshav Bharati, I want to take sannyas from you, then Keshav Bharati is very happy. Okay, I will give sannyas. But Chaitanya Mahaprabhu told, and in the last night, and so beautiful sweet dream had come, and I heard in my dream this mantra had come, sannyas mantra. And then Keshav Bharati, what mantra did you take in your dream? Then Chaitanya Mahaprabhu this sannyas mantra. Understand? Ballabhaya Swa. This mantra. गुरुदेव, इसमें काफी जगह बोलते हैं, सब लोगों ने श्रवण करा हुआ है कि अगर महाप्रभु ने केशव भारती से संन्यास लिया होता तो उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य भारती होता, क्योंकि उनका वो जो संन्यास थे केशव भारती नाम लगाते, टाइटल लगाते नहीं। उसमें होता क्या है, उस समय संन्यास देने के कई स्टेज होता है। जैसे कोई डायरेक्ट जाए उसके संन्यास, उसके ब्रह्मचारी बेच दिया जाता है। उसमें भी प्रभुपाद टीका में लिखा है, पढ़ना, चैतन्य चैतन्य अनुभास से लिखा है। उनकी पहले संन्यास मंत्र तो दिया, किंतु उसमें कहा जाता है पहले ब्रह्मचारी रूप में रखा जाता है। हम लोग के संप्रदाय में आज तो कोई भी आ गया दे देते हैं, उसमें ऐसे नहीं होता है। एक तो होता है ब्राह्मण बिना किसी के संन्यास नहीं दिया जाता है। उस समय जाति प्रथा नियम बहुत कठिन था। अद्वैतवादी के जो है उनके अभी तक भी उनके प्रथा में पहले आपको कहेंगे आप कौन सा ब्राह्मण है कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। यदि आप ब्राह्मण नहीं हो आपके संन्यास नहीं दिया जाए। वहीं पर जातिवाद प्रथा की जो है बहुत कड़ा नियम होता है।
ऐसा नहीं। ब्राह्मण छोड़ के दूसरे जाति के सन्यास देने की विधि नहीं है। हम लोग इसके कहते हैं क्या बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने जो दैव वर्णाश्रम धर्म के उन्होंने प्रचारित किया श्रीमद् भागवत के अनुसार है। दैव वर्णाश्रम धर्म की तात्पर्य यह है, आप किसी भी जाति में कुल में उत्पन्न हो, यदि आपके उस स्वभाव के अनुसार आप उसी वर्ण और आश्रम के निर्णय होगा। किंतु इसके पहले वो नहीं था। आपके ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण ही होना पड़ेगा। आपके पिताजी ब्राह्मण है कि नहीं है? ब्राह्मण यदि नहीं हो तो आपको नहीं दिया जाए। ब्राह्मण होने के जरूरी है? पहले नियम था ब्राह्मण यदि नहीं हो, क्यों? ब्राह्मण यदि आपके खून में ब्राह्मण कर नहीं, खून तो ब्राह्मण नहीं है। उनकी ये विचार था ब्राह्मण नहीं हो तो कैसे हो जाए? ऐसे ब्राह्मण जरूरी था वो। किंतु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद श्रीमद् भागवत गीता आदि शास्त्रों के द्वारा ये प्रमाण कराया, ये स्वभाव के द्वारा ही उसके वर्ण और आश्रम निरूपित होगा। जो जिस स्वभाव के होगा, चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभाग। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं 4 वर्ण और आश्रम ये निरूपित होगा उनके गुण और स्वभाव के द्वारा। ब्राह्मण है किंतु ब्राह्मण कर्म नहीं करता है, उसके ब्राह्मण नहीं कहा जाए। किंतु देखो ये कुछ भी कह दे, ब्राह्मण नहीं बोलते, ब्राह्मणत्व तो उनके तो खून तो हृदय में है, स्वभाव है, किंतु स्वभाव वो सुप्त रूप में है, छुपा हुआ है। इसलिए कहते हैं जो ब्राह्मण बिना कोई सन्यास ग्रहण नहीं करेंगे। उस समय जाति प्रथा की बहुत कड़ा नियम था। इसके लिए तो भक्तिवेदांत प्रभुपाद के लिए बहुत कुछ रिझना पड़ा, माने प्रोटेस्ट करना पड़ा। कितने बड़े बड़े पंडितों के साथ उनको तर्क वितर्क करना पड़ा। आया समझ? ये जो है वर्ण जो आश्रम धर्म उस समय स्वभाव के अनुसार था। इसके लिए वशिष्ठ ऋषि भी उसमें देखा जाता है। विश्वामित्र वशिष्ठ की युद्ध किस लिए हुआ? उसके कहा दे ब्रह्मर्षि कह दो। विश्वामित्र चाहते थे मैं ब्रह्मर्षि बन जाऊं, किंतु वशिष्ठ कहते नहीं, तुम्हारी ये ब्रह्मर्षि जो है वो तुम्हारे गुण नहीं है। तुम राजर्षि हो सकते हो, राजा हुए ऋषि हो सकते हो, किंतु ब्राह्मण हुए ऋषि नहीं बन सकते। समझे? किंतु काल क्रम से सब जाति भेद ये सब नष्ट हो गया। इसके तो इतिहास बहुत कुछ है। लोग उसके धीरे धीरे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और आजकल तो बिल्कुल चला गया, पाश्चात्य देशों के विचार से आकर के चला ही गया है। उसके पता नहीं है उसके पिता माता ब्राह्मण है कि क्षत्रिय, तो ब्राह्मण के खून ही नहीं रहा। आज जो देखा जाता है जो संमिश्रण, उसे क्या उसे कहा जाता है संकर कहा जाता है, वर्ण संकर हो गया। भागवत गीता में तो वही तो बोलते जा रहे, मिश्रण हो गया ना। संकर शब्द का अर्थ है मिश्रण। शिव तत्व हम कहते, शिव के एक नाम क्या है? संकर्षण नहीं, संकर। संकर शब्द के अर्थ होता है मिश्रण, मिश्रण, मिक्स है। शिव जी के शंकर किस लिए कहा जाता है बताओ? पहले क्या सुना शिव तत्व के बारे में? शिव जी के शंकर किस लिए कहा जाता है? उनमें सारे तत्व विद्यमान है, जीव तत्व और मतलब भगवान विष्णु तत्व। हाँ, अच्छा बता रहे हैं, सब पंडित है, बहुत अच्छा सुना। हाँ, शंकर शब्द के 3 तत्व उसमें विराजमान है। एक जीव तत्व के कुछ अंश है, माया तत्व के कुछ अंश है, और भगवत तत्व के विष्णु तत्व में भी संमिश्रण है।
ये तीन वस्तु के मिश्रण होने के मिश्रण तत्व व संकर तत्व कहा जाता है। जैसे कांसा है ना, कांसा में दो वस्तु मिलावट होने के कांसा होता है। हम जो कांसर बजाते हैं गंग, उसमें क्या कहते हैं, लोहा भी रहता है, तांबा भी रहता है, कॉपर एंड आयरन मिक्स, देन वी आर गंग। गंग इज गंग ऐसे, उसमें जितना वो मिश्रण रहता है वो गंग अच्छा बोलते हैं। यदि तांबे के बाद ज्यादा हो जाए वो दूसरी शब्द होगा, और लोहे के भाग ज्यादा हो जाए दूसरी शब्द होगा। किंतु जब समान होता है, तांबा और लोहा समान मिला करके जब गंग तरीके, उसके आवाज बहुत सुंदर होता है, ढंग ढंग बजता है। मिश्रण कहने के शब्द होता है मिक्स्ड। उसी प्रकार शंकर, शिव जी के शंकर इसलिए कहा जाता है, शिव जी में मिश्रण तत्व है। क्या क्या मिश्रण? जीवों के गुण किस कुछ है उसमें, जीव के गुण, माया के कुछ गुण है। माया के कौन से गुण है आप जानते हो, बताओ? तम गुण है। ऐसा माया के तम गुण से संमिश्रण है। और भगवान की विष्णु के गुण जो सृष्टि तत्व के गुण इसमें है, देखो तो। और जीवों के गुण उसमें भी है, सात्विक और राजसिक आज उसमें हो जाता है। इसलिए उसी के कहा जाता है शंकर सदे का मिश्रण है। जिस कथा हम कह रहे थे, क्या बोला था? केशव भारती जो है कहते सार्वभौम भट्टाचार्य ने तो यही भी कहा, तुम जो सन्यास लिया, यदि चैतन्य महाप्रभु सन्यास नहीं लेते, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको नहीं बोलते है कि तुम भारतीय संप्रदाय से लिया। उस समय संप्रदाय सन्यास कैसे दिया जाता था? सन्यास मंत्र तो दिया जाता है पहले, किंतु कुछ समय तक उनको जो है, उनको ब्रह्मचारी वेश दिया जाता है, ब्रह्मचारी में रखा जाता है। ऐसा डायरेक्ट आ जाने से उनके डोर को भी तो पहना देंगे, सन्यास मंत्र भी दिया देंगे, किंतु ब्रह्मचारी आश्रम में रखा जाता है। ऐसा उसका नियम बहुत था। फिर उनकी प्रकृति लक्षण, स्वभाव आदि लक्षण के द्वारा धीरे धीरे सन्यास पंक्ति में उसके बैठा जाए। पंक्ति समझते हो? इन द लाइन ऑफ सन्यास। ये नहीं आज सन्यास लिया और सारे सन्यासी के प्राचीन सन्यासी के एक लाइन में बैठ जाओगे, ऐसे नहीं होता था। उसमें लिख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के सन्यास नाम क्या हुआ? श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य उसके नाम रख दिया। ये चैतन्य शब्द है, ये ब्रह्मचारी के टाइटल है। ब्रह्मचारी जो है, मायावादी के ब्रह्मचारी के टाइटल जो है चैतन्य, चैतन्य कहा जाता है। चैतन्य माने ज्ञान, चैतन्य माने चेतना, चैतन्य। इसके बारे में अच्छी तरह से जाना चाहिए। आज महाप्रभु के है ना, ये चैतन्य महाप्रभु के नाम, सन्यास के नाम क्या हुआ? श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण नाम तो बहुत सुंदर हो गया, तो चैतन्य क्यों रखा? चैतन्य ये ब्रह्मचारी के नाम होता है, इसलिए उनको वही प्रकार रखा गया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो मायावादी से तो श्री कृष्ण उसमें यूज करते थे, यूज करते हैं श्री कृष्ण। सन्यास ले लिया ना, सन्यास लेने जैसे विष्णु नाम होता है, इसमें श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण चैतन्य। अशुद्ध ब्रह्म के, हाँ, भारतीय अभी ब्रह्मचारी में रखा गया ना, उसके सन्यास दे दिया। अभी पूर्णतः सन्यास के पूर्णतः नहीं दिया गया उनके सन्यास। उनके बहुत नियम होता है। ये नहीं देते एक साथ में सब कुछ कर देंगे। श्री कृष्ण चैतन्य, और उनके सारे जो है कहते श्री कृष्ण नहीं उच्चारण नहीं करते थे, तब चैतन्य कहने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य जब ये कहने लगे, उनके नाम क्या है? कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य, बड़े चैतन्य चैतन्य। कृष्ण नाम उनके जिहा में उच्चारित नहीं हो रहा है। ये भी जोगमाया की क्या किया, ये उन लोग के जिहा में श्री कृष्ण नाम उच्चारण नहीं हो रहा है, क्यों? अपराधी है, मायावादी अपराधी है। So for this regard, they can't chant Shri Krishna. They chant Chaitanya. ब्रह्म चैतन्य,
ये बताएं चैतन्य माने ज्ञान, चैतन्य मीन्स नॉलेज, ज्ञानं ब्रह्म, नॉलेज इज ब्रह्म, ज्ञान है ब्रह्म चाहिए। सो नाउ कमिंग दिस, क्या प्रसंग से कहाँ का ले जा रहे हैं? हाँ, just I told one gopi in Aprakat Golo Vrindavan, and then one gopi indicate his fingers and to Chaitanya Mahaprabhu when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. Kari pasati sakhi khiti tale. Oh my girlfriend, look in the material world. Our beloved Krishna, he took sannyas. That time that sakhi said, "Are pagli, how possible our beloved Krishna will take sannyas? Look." Then I said, "Look, his cloth is your sannyas cloth, saffron cloth." Then that gopi told, "This is not his saffron cloth." उनके ये saffron cloth नहीं है, वो क्या है? वो हम लोग की रासस्थली में रास करते करते, नृत्य करते करते, रास माने नृत्य करते, इन द रासस्थली singing, ras means you are dancing and singing, so much sweat coming, then our cloth completely wet, भीग गया, पसीना में भीग गया, our cloth completely wet with our क्या बोलते हैं, sweat, then our chest kumkum completely colored that cloth, then we also, तब हम लोग ने क्या की, उस क्लॉथ को क्या कर दिया, उसी रासस्थली में छोड़ दिया। हम लोग नया कपड़ा ले लिया और उस कुमकुम मिश्रित जो क्लॉथ जो है उसको हमने छोड़ दिया, और हमारे बिलावेड कृष्ण ने क्या की, उसी रासस्थली में जाकर के उस क्लॉथ को लेकर के अपने सिर पर ढक लिया, कहते मैं सन्यास ले लिया। देखो कितने सुंदर होता है, क्योंकि कृष्ण सन्यास लेंगे ये कोई भी संभव नहीं है। Krishna can to take sannyas, because our scriptures explain, angaro satadhuteno molinata no munchate. 1,000 times if you wash the coal in the water of the pure Ganga Jal, the coal will not give up his own complexion, black color. And कैला है ना, कैला को यदि गंगा जल में, विशुद्ध गंगा जल में जितने भी आप उसके धोते रहो, क्या कैला कालापन छोड़ देंगे? नहीं छोड़। इसलिए इंग्लिश में कहता है अंगारो, संस्कृत में कहता है अंगारो सतधौते न मलिनता न मुंचते। 1,000 times if you wash the coal in the water of the Ganges, fresh water Ganges, the coal will never give up his own color. And in the same way Krishna nature is what? Enjoying. Just he is taking sannyas. This is not true. So now coming in this way, here Krishnadas Kaviraj Goswami explained, just you also explain, that the two regions, Krishna, he appeared in this Kali Yuga in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. One is called internal region, another is called external region. अंतर जो कारण बताते जा रहे हैं, जिस श्लोक में हमारे स्वरूप दामोदर भी कह रहे हैं, श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो बानैवा सद्योजनो मधुरिमा कीदृशो बान सद्योजनो मधुरिमा कीदृशो बामति सोखंच सद मधुंत कीदृशो बेतिलुबा। चलो इसी श्लोक में 3 कारण भी बता दिया है, जिसके हम कारण दे। वो प्रणय क्या है? व्हाट इज द प्रणय? How do you know meaning of the pranay? Pranay means both hearts is what one. There are no difference. You tavahidang mamahidang, mamahidang tavahidang. जिसे कहा जाता है विवाह क्या लिखा जाता है? प्रणय बंधन। बांध देता है फिर काट देते हैं। विवाह के समय बांध देते हैं ना, 2 हाथ को रस्सी से, धागा से बांध देते हैं। Bride and bridegrooms 2 hands bind and tied with the thread. Then when they took vow, then again cut. चलो हो गया, शादी हो गया ना। प्रणय बंधन, प्रणय सूत्र बंधन,
वो जो सूत्र माने धागा, प्रणय रूपी धागा के द्वारा ब्राइड और ब्राइडग्रूम के बांध दिया जाता है। अच्छा, बांधा ही रहे, खोल देते हैं हम लोग, खोल देते हैं ना। विवाह देखा कभी? अपने बहन के विवाह देखा है? अच्छा, किंतु अपराकृत जगत में जो प्रेम जो है वो प्रेम के हृदय के द्वारा दोनों ही बंधे रहते हैं। प्रेम अपराकृत। इन ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड एंड राधा एंड कृष्ण दे आर प्रणय and tied and they are never separated. Where is Radha? There is Krishna. Where is Krishna? There is Radha. Jatra jatra Radha, tatra tatra Krishna. प्रथम पर ये है फर्स्ट स्टेप्स, you have to learn this thing. ये राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे द्वैरू. राधा कृष्ण is one, but they manifested in two forms of Radha and Krishna, Shakti and Shaktiman. So Krishna is called Shakti, Srimati Radhika, Krishna is called Shaktiman, and Srimati Radhika, she is called Shakti. But both are staying together, you cannot separate. So for the Jatra Radha, Tatra Krishna, or Jatra Krishna, Tatra Radha. So are they saying Radha Krishna एक ही स्वरूप? You want Radha Krishna, you want. When you discuss about Brahma, Advaitavadis, they are saying everything is Brahma. But what is the meaning of Brahma? Sagata, Sajatya, Vijatya, Bhed Rahita Brahma. Brahma means it. And all the incarnation of Lord, not different from Him also. Sagata. Sagata means for all His limbs and body, He can perform all kinds of activities. भगवान के सारे इंद्रियों के द्वारा सभी कार्य साधन हो जाते हैं। हम लोग केवल आंखों के द्वारा देख सकते हैं, आंखों के द्वारा हम खा नहीं सकते। We can eat only with our mouth, and we cannot eat with our eyes. आंखों के द्वारा हम केवल खा नहीं सकते, आंखों के द्वारा हम केवल दर्शन करते हैं। With our eyes only you can see, you can watch the TV. But Bhagavan, who is Lord? How do you know He is Lord? He can perform all His activities with His any limbs and body. भगवान अपने किसी इंद्रियों के द्वारा सब प्रकार काम कर सकते हैं। वो आंखों के द्वारा खा सकते हैं, आंखों के द्वारा चल सकते हैं, आंखों के द्वारा बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखो यही है भगवान की अचिंत्य शक्ति। इसलिए कहते हैं अंगानी जस्सा सकलेंद्रिय वृत्ति बनती पसंति पांति करंती जगत गोविंदम आदि पुरुषां तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषां तमहं भजामि। This is the basis. Brahma means this way. Angani jasa sakalendri vittimanti pasanti panti kalandi jaganti. So now coming in this way, Krishna is the supreme personality of Godhead. जिस कथा हम लोग एक प्रश्न था मेरा, दशमान धाम और प्रकट धाम दोनों में अंतर क्या होगा? अब जैसे जगन्नाथ की जो लीला 500 साल पहले जो हुई, तो उसको उस लीला जब हुई इसमें अभी इस कल्प में, उसको क्या बोलेंगे? उसको दशमान धाम बोलेंगे या फिर उसको प्रकट धाम बोलेंगे? 500 साल पहले महाप्रभु की जो लीला हुई, जब हुआ था उसके प्रकट धाम कहा गया। प्रकट लीला, प्रकट धाम। अभी तो धाम है, किंतु वो लीला अभी तक नहीं है। इसे कहा जाए दृश्यमान धाम, दृश्यमान प्रकाश। अभी ये देव देख रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं, कौन सा देख रहे हैं? नवदीप धाम। ये जो नवदीप धाम देख रहे हैं, इसे कहा जाए दृश्यमान प्रकाश। अभी लीला नहीं दिखानी पड़ेगी, दृश्यमान। ये दृश्यमान स्थान को देख रहे हैं। इसके वृंदावन की, जैसे वृंदावन जाते हैं, राधा कुंड के आप देख रहे हैं, किंतु राधा कुंड की लीला नहीं देख रहे। वो लीला अप्रकट हो गई, चले गई। स्थान तो पड़े हुए हैं,
वो दृश्यमान काल, अभी हमारे पास दृश्यमान काल होता है, स्थान वो पड़ा हुआ है। वही राधा कुंड है, जिस राधा कुंड में श्रीमती राधिका सखियों के साथ जल विहार की, वो राधा कुंड, वही जल तो वही है, स्थान वही है, सब कुछ वही है, किंतु अभी लीला नहीं दिखाई है। इसलिए तो हमारे गोस्वामी वर्ग रोग रोग कीर्तन, हे राधे ब्रज ललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद बतले कालिंदी वन्ने कुतः, गोशांत बेति सर्वतो ब्रजोरे खेद्रि महाविहल्लो, वंदे रूप सनातनो रघुजुगो है। हमारे गोस्वामी वर्ग वृंदावन में रह करके किस प्रकार भजन करते थे, इसी प्रकार विरह में भजन की पद्धति चैतन्य महाप्रभु हम लोग के दर्शन कर सिखाया। हाँ। हाँ? इस धाम में लीला नहीं, वो अब और कुछ धाम में लीला हो रही, इस धाम में लीला नहीं चल रही है। किंतु यदि आप देखना चाहते हैं तो जोगमाया के इसी धाम में और आपको दर्शन कराएंगे। जीव गोस्वामी के दर्शन कराया, देखो ये दर्शन करा दे, वो आपके नहीं देखा जो, हाँ, वो भगवान की लीला जो है वही अधिक अद्दापदी सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए, क्योंकि धाम अप्रकट होने के नाते, धाम चिन्मय होने के नाते, धाम की वो आपकी लीला आपको नहीं चल रहे, किंतु वो धाम के ऊपर एक माया के जाल है ना, इसको आपको दिखाएंगे है जो लाभ है। किंतु ये धाम और अप्रकट धाम एक सेम है ना, तो जब आपके जो लीला जो दर्शन कराएंगे उसी धाम को लीला यहाँ पर प्रकट करा देते हैं। यहाँ पर लीला नहीं हो रहा है, लीला तो दूसरी वृंदावन में, दूसरी ब्रह्मांड में लीला चल रही है। उस दूसरे ब्रह्मांड में जिसको कहा जाए अलावत चक्र है, एक जलती हुई लकड़ी के जोर से घुमाया जाए जैसे एक आग की गोला दिखाई पड़ेगा है, उसी प्रकार भगवान की सारे लीलाएं जब विभिन्न अनंत ब्रह्मांड में चलती जा रही है, वो घूम घूम करके आ रही है। परिक्रमा कराई तो जो लीलाओं को वहाँ जो उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने लीला देखी, तो लीला वहाँ हो नहीं रही थी, उसको प्रकट लीला से वो अप्रकट लीला को यहाँ पर अपने अप्रकट लीला को यहाँ पर प्रकट करा दी थे और उसको दिखा रहे हैं। वो लीला हो रही है वहीं पे, कहीं हो रही है नहीं, एक तो लीला कहीं न किसी ब्रह्मांड में हो रहा है, अभी तक वो किसी ने ब्रह्मांड में हो रहा है। चलो दिल्ली में लीला चल रही है, किंतु यहाँ पर लीला नहीं हो रहा है। अरे दिल्ली एक ब्रह्मांड मान लिया जाए, नवद्वीप यहाँ पर एक ब्रह्मांड मान लिया जाए, मथुरा ऐसे किसी किसी ब्रह्मांड में चलते जा रहे हैं। जो जीव गोसाई पाद नित्यानंद जीव गोसाई जो लीला दर्शन करा रहे हैं, वो कौन सा ब्रह्मांड, इसी ब्रह्मांड की वो अप्रकट गोलोक वृंदावन जो लीला जो है वो यहाँ पर प्रकट करा देते हैं, सोच रहे यहाँ पर हो रहा है, वो उसी लीला को जो यहाँ पर प्रकट करा देते हैं। यही तो है, यहाँ पर लीला नहीं, इसलिए इसके कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश धाम है। मूल धाम क्या होता है? मूल धाम अप्रकट का धाम, अप्रकट बड़ा जो है वो वहीं पर लीला चल रही है अभी। और प्रकट में क्या होता है, जब चैतन्य महाप्रभु लीला, जैसा मैं एक कथा सुना रहा हूँ, वहीं पर लीला चल रही है, साथ ही साथ यहीं भी लीला चल रही है, दोनों एक साथ में समझना लीला चल रही है। जैसे ये इतना सहज में समझ में नहीं है, आपके बहुत संशय आ जाए क्यों, और हमारे बोलना भी आपके ठीक नहीं होगा क्यों। हम यहाँ पर जितने भी शब्द थे, ये प्राकृतिक शब्द और मौल शब्द आ जाता है। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं ये इस जगत में हम तो कथा भी बोलते जा रहे हैं, किंतु इस कथा में कहीं न कहीं माया के दोष आ जाता है। माया के दोष क्या है ना, इस जगत में तीन प्रकार के काल कहा जाता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीन त्रिविध काल इसमें है। किंतु अपराकृत जगत में काल की तरह नहीं हो रहा है, इसको ही समझो। इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द काल टाइम। अपराकृत जगत ओनली वन काल टेंस। क्या काल है?
हाँ, उसके नित्य वर्तमान कहा जाता है। एक तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में वो होता है ना, एक होता है नित्य वर्तमान काल जिसको कहा जाता है। टेंस के हर टेंस में 3 प्रकार के ना 4 प्रकार के विभाजन है ना। क्या क्या बता, पहले सुन लेता हूँ। वो तो प्रेजेंट फ्यूचर 3 हो गया। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना। हर टेंस में 4 विभाजन, 16 प्रकार हो जाता है। इस जगत में हम जब समय के जब एक विभाजन करते हैं, समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू द ग्रामर्स, व्हेन वी डिवाइडेड द टेंस सीक्वेंस इज देयर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, then again every tense also in 4 क्या बोलते हैं, 4 डिवीजन आ जाता है। तो कितने हो गया? 4 3 12 आ गया ना, 12 आ जाता है। प्रेजेंट इंडिफिनाइट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस जगत में जितने प्रक्रिया होती है, इस जगत में प्रेजेंट शब्द नहीं होता है। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड यू कैन नॉट द प्रेजेंट टेंस, बिकॉज व्हेन यू से दैट सेम सिमल्टेनियसली देयर इज ऑटोमेटिकली पास्ट। घड़ी का देखो तो अभी टाइम क्या हो गया आप बताओगे? 11:25 हो गया। हम बोलेंगे साथ ही साथ 10 सेकंड आगे चलेंगे। फिर तुम प्रश्न पूछते पूछते और 10 सेकंड आगे चला गया। फिर मैं उत्तर देते 10 सेकंड हो गया। देखो 30 सेकंड अपने आप चला जाता है। ये बोलेंगे 1 मिनट ज्यादा बोलेंगे। देखो इसलिए हमारे विश्वास, इस समझता हमारे विश्वास से स्केप्टिक कर रही। इस जगत में प्रेजेंट शब्द नहीं हो सकता है। इस जगत में क्या शब्द हो सकता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नित्य वर्तमान ना, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस शब्द होता है। मैं चल रहा है, कहते हैं पानी ले आओ, ला रहा हूँ, ला रहा हूँ। बोले कब ले आओगे? आ रहे हैं। हम लोग कहते ना आज चल रहे, मैंने चलते जा रहे। वो कब समाप्त तो कोई नहीं जानते। कंटिन्यूअस होते ना, ING जो कर देते। ही इज कमिंग, कमिंग, महाराज कमिंग, वाटर इज कमिंग, आई विल ब्रिंग वाटर, वाटर इज कमिंग, टाइम इज नॉट डिसाइडेड, टाइम इज नॉट डिसाइडेड। किंतु अपरागित चित्त जगत में एक ही टेंस है। वो क्या है? क्या बोला? नित्य वर्तमान काल। मनुष्य ने भूल जाते। नित्य वर्तमान, नित्य वर्तमान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इटर्नल प्रेजेंट होता है नित्य वर्तमान। वहां पर कंटिन्यूअस शब्द भी नहीं रहता है। यहाँ पर कंटिन्यूअस करते आ रहे हैं। आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, दैट मीन्स येट यू आर नॉट अराइव्ड, अभी आप पहुंचे नहीं है। ऑन द वे, ऑन द प्रोसेस, आप ऑन द वे। कहते महाराज मैं आ रहा हूँ, पानी ले आओ, पानी आ रहे हैं। कब आएगा कौन जाने। ऑन द वे, बट इन ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड ऑलवेज द नित्य वर्तमान का। बोले हाउ दिस वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड द अचिंत सत्य, दिस इज कॉल्ड द अचिंत। अद्यावधि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी पारे पाए। स्टिल कृष्ण लीला चैतन्य महाप्रभु इज गोइंग इन ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, गोइंग ऑन दिस सही लीला। बट दोज हु आर वेरी extreme fortune by Jogmaya they can see. But which Leela they will see? Who knows? But in Brahmanda that Leela is going on, that Leela. Or in Aprakat Golok Vrindavan, then Jogmaya manifests, then you can see. And here Nityananda Prabhu, he told to Jiva Goswami, hey Jiv, look, this Leela. Then Jiva Goswami saw this Leela is how it's going. Actually this Leela, Nityananda Prabhu himself manifested that Golok Vrindavan Leela in here. Then Jiva Goswami. ये भक्त पर निर्धारित करता है वो किस लीला को देखता है। हाँ sir. So now coming in this way, because I told this Krishna Leela, Gaura Leela simultaneously is going on. ये क्या कर रहे हैं? Ladies and gentlemen, चलो। हाँ। इस साइड आ जाओ आप। धूप आ रही है मुझे। ठीक है ठीक है।
हाँ? यहाँ यहाँ जाओ वो आगे बीच में ये कुर्सियाँ कसा अरे आनंद आ रहे हैं ना। डिस्टर्ब हो जाएगा ऐसे चलने हाँ अच्छा चलो, क्या बोला मैंने? श्री राधा ये कृष्ण लीला है। सो फॉर दिस रिगार्ड श्रीमद् भागवतम जोग माया सदर्शितम, यू कैन सी द कृष्ण लीला with his yoga maya, same lila manifested, you can see. So now we're coming, why Krishna के प्रेम रसन दास करिता सदान, राग मार्गे भक्ति लोक करिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম, ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত, ঐশ্বর্য শিথিল প্রেম নাই মোর প্রীতি, আমার ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন, তার প্রেমে বস আমি না হয় অধীন, আমাকে তো যে যে ভজে ভক্তগণ যেই ভাবে, তার সেই ভাবে ভক্তি এই মোর স্বভাবে। लड़की गुर्दे को गिरेगी वो देखो तो हरि बोल। fall down. she'll be nervous. Sorry, those are wires. So now here Krishnadas Kaviraj Goswami explain now Krishna, that means his greed is increasing more. Narayan, then and Ramachandra, Nisingha, Ramchandra, then Darkadhish, then Mathuradhish, then Varinandana Syamasundar. And greed is coming. Actually, I want to say how the greed is more and more increasing. He is not satisfied in all the Leela of Vaikuntha, Ajodhya, Dwaraka and Krishna. Actually, why this? Because Vaichitrata ये सबसे जो है हमारे जीवन का एक विशेष वैशिष्ट्य है। वैचित्रता, वैचित्र मीन्स वैरायटी। हम लोग जीवन में क्या चाहते हैं? वैरायटी चाहते हैं, वैचित्रता हम सब चाहते हैं। एक स्थिति में हम और रहना नहीं चाहते हैं। वी आर नॉट स्टेइंग इन सेम प्लेस एंड सेम वे। जीवन की हम क्या चाहते हैं? एक परिवर्तन करना चाहते हैं। Always you are changing. How to our lifestyle change? Change phase. हम एक सदा सर्वदा एक रूप में हम रहना नहीं चाहते, जीवन की परिवर्तन करना चाहते हैं। इसको कहते वैचित्रता। पेड़ में भी वैचित्रता आता है। कितने पत्र आता है? There are so many leaves in the one tree. But you cannot see one leaf or another leaves at the same. Must be somewhere some difference. For this regard, Sukdev Goswami Pad told Parikshit Maharaj, the change, this is the nature. हर रोज हम लोग एक ही सब्जी नहीं खाते हैं। Every day we are not taking the same sabji. We are also changing. Maybe same sabji, also different way we want to eat. अरे आलू के भरता कोई बना दिया, आलू के कुछ क्या बोले ब्रेक पोटैटो बना दिए, सैंडविच बना दिया। आलू के एक ही, आलू तो एक ही है, किंतु उसके बनाने की प्रक्रिया विभिन्न हो गया और स्वाद भी विभिन्न हो जाता है। क्यों? हमारी जिहाज सादा सदन करने वैचित्रता है। ये वैचित्रता किस में है? वैरायटी किस में है? भगवान में है। एक रस और बहुरस है। जैवोद्धार ग्रंथ में वर्णन करते हैं एक रस और बहुरस है। कृष्ण एक रस है यार, भक्त बहुरस में विभाजित। अब लॉर्ड, बिकॉज लॉर्ड इज व्हिच लॉर्ड, his symptom is what? Atmaram and Aptaka.
हैं? भक्त भगवान, भक्त जिस प्रकार भगवान के देखना चाहते हैं तो भगवान भक्त के अनुरूप अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। लॉर्ड मैनिफेस्टेड हिज फॉर्म अकॉर्डिंग द रसा ऑफ द डिवोटी। भक्त जैसे चाहते, कोई दास्य भक्त है भगवान की, है? इसलिए भक्त की स्वरूप माधुर्य प्रकाश करते हैं। ये भगवान के स्वरूप माधुर्य प्रकाश होता है किससे? भक्त के ऊपर। मैंने कहा ना भाई, कथा कौन क्या सुनना चाहते हैं? डिपेंड ऑन कौन किस कथा सुनना चाहते हैं। तो कहते महाराज नींद की कथा सुनाओ। नींद क्यों आती है? जैसे कुंभकर्ण है ना, कुंभकर्ण ही वर्शिप ब्रह्मा जी from hard study. Brahmaji asked Kumbhakarna, you ask any benediction I will give you. Then Mahamaya manifested in the mouth of Kumbhakarna. Kumbhakarna, he wants to Indrapad. क्या पद? Indrasan. But Mahamaya manifested in his mouth and told